संसद रे आगत है वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा रे आगत करिसेंती आईन मंत्री अर्जुन मेघवाल। Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A, sub-Article 3, simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. This parliament is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 1 and list 3. Similarly, state assembly is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 2 and also list 3, subject to that it would not be contrary, so far concurrent list is concerned, it would not be contrary to the Article 254 of the Constitution. Therefore, by this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra vires. That is hits the basic structure of the Constitution. Sir, Article 82 or sub-Article 5. Unfortunately, I can't think about it. I can't think that Article 82 sub-Article 5 is giving an uncanonized power to the Election Commission of India. Though we don't have any value, we don't have any value, then Election Commission of India will decide everything. Till doomsday, a party cannot remain as a ruling party. One day it will be changed. Sir, why law providing state funding for conducting the election is not brought? Every problem will be resolved. Do all elections. How many monies are being spent? All elections should be done from the state election fund. Why we are not bringing? That will be about real election reforms. This is not the election reform. Okay. It is a reform. Sir, I have not finished, sir. It is not an election reform. Listen, sir. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. No, it is not permitted. Sir, we have seen, we have heard the speech of the Honorable Prime Minister regarding the first amendment of the Constitution. Sir, Dr. B.A. Ambedkar said, we are giving a draft constitution to the country and country will make the amendment. So how Pandit Jawaharlal Nehru has not brought any, sir, listen, sir, No. has not brought any constitution which really hits the basic structure. Excuse me. Sir, आप इतना रूठा मत कीजिए, आपने इतना रूठा मत, हाफ मिनट अपना रूठा मत होइए. This is not done. This is, sir, all the time. We have brought, this government has brought constitutional amendment, National Judicial Appointment Bill. It was passed. It has been struck down by the Supreme Court because it is
hit the basic structure of the constitution. There are so many amendments I have had. Sir, this bill we are opposing for introduction, and at the same time, sir, when you will take into consider, kindly take a division. We want to oppose and we will show you our strength. डीएमके टीआर बालू या कनिमोझी जी, आप भी डिसाइड कर लो आपस में। नहीं, वो कनिमोझी जी भी हाथ खड़ा कर रही है, मैंने कहा आप भी डिसाइड कर लो। अभी आपको मैंने इजाजत नहीं दी, बालू जी को इजाजत दी है। Sir, oppose the Constitution Amendment Bill 129. As my leader, Dr. M.K. Stalin has said, टीआर बालू जी, it is anti-federal and नहीं, आपका नोटिस है, मैं दूंगा आपको, प्लीज बैठिए, आपका नोटिस आपको दूंगा, लेकिन भी टीआर बालू जी, our unitary form of governance, killing its diversity and democracy in process. Unquote. Sir, I want to know, sir, how could they allow this bill, allow this? मैं आपको मौका दूंगा, आपका नोटिस है, मैं दूंगा आपको मौका, बैठिए Sir, when the government is not having two-third majority, how could they allow this piece of legislation in this house? I want to know, sir. It needs two-third majority. बालू जी, प्लीज। Yes, sir. मैंने अभी अलाउ नहीं किया, अभी उन्होंने प्रस्ताव रखा है, संसद अलाउ करती, मैं अलाउ नहीं करता। So the electors has right to elect the government for 5 years, and the same cannot be curtailed with simultaneous election. The simultaneous election would incur additional cost of 13,981 crores. In addition, 9,284 crores will be required for procurement of EVMs, VVPAT to meet the requirement of simultaneous election. The Parliamentary Standing Committee in its 79th report in 2015 has concluded that, I quote, gaining consensus of all the political parties may be difficult and holding simultaneous election may not be feasible. With this, I want to conclude, sir. At the same time, I request the government can take up the matter to the JPC so that it can be discussed there and bring back the bill to the House, sir. Thank you, sir. मैं सबको दूंगा समय, आप निश्चिंत रहे। श्री लाओ श्री कृष्णा सबको दूंगा समय, जिसका नोटिस नहीं उसको भी समय दूंगा। लाओ श्री कृष्ण सबको समय दूंगा। First you speak. नो फर्स्ट नहीं, एक वन सिंगल। I will be referring. हाँ, आप डिसाइड कर लो। Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation, One Election bill. Sir, our party's guiding force, Sri Nara Chandrababu. एक मिनट। रूल 72 में है, लेकिन एक मिनट, हमने वक्त के समय भी सभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलिए ना कुछ। आपने, अध्यक्ष महोदय जी, आपने शुरू में हाउस का सेंस लेकर के बहुत ही क्लियर शब्दों में आपने कहा कि पहले उसका उदाहरण भी आपने दिया और दो बिल्स को एक साथ क्लब करके चर्चा का समय एक साथ करेंगे, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। साथ साथ में ये भी कहा, क्योंकि नोटिस एक पार्टी से कई नोटिस आए हैं, किसी पार्टी से नहीं आया, लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए अध्यक्ष ने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, अध्यक्ष जी ने ऑलरेडी कहा सारे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को, फ्लोर लीडर्स को इसमें मत रखने का मौका देंगे, ये अध्यक्ष ने कहा है। और ऑल द फ्लोर लीडर्स मतलब सब पॉलिटिकल पार्टी, आप सिर्फ इस संसद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है इसमें, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए।
ओके प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अभी बुलाते हैं, अभी बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं। अभी मैं रूलिंग दे रहा हूँ, अभी प्लीज आप बैठिए। आप भी रूल की किताब बैठे हो तो मैं भी रूल की किताब लेके बैठा हूँ। अभी मैं बताता हूँ इस विषय पर। पहले हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आप बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए। इटी मोहम्मद बशीर जी, ओके। इटी मोहम्मद प्लीज, इटी मोहम्मद बशीर, इटी मोहम्मद बशीर। हाँ सर इटी मोहम्मद बशीर जी, समझ लिया आप। प्रेमचंदन जी क्लियर कर दिया सबको। चलो इटी मोहम्मद बशीर जी, सर बेटे सर आप समझा दिया करो सबको। इटी मोहम्मद सर। बशीर जी। Sir, I express my very strong opposition for the very presentation of this bill because of the pertinent reason. Number one, this is really an attack on the democracy and constitution and federalism of India. Sir, this amendment is implemented in some state will have tenure for less than 3 years even, which is against the vision mandate of the voters of this country. Sir, if this proposal is implemented in a way, its significance of the local issue will be undermined. That is another thing I want to point out. Because of this particular reason, I vehemently oppose this. श्री अनिल देसाई। Thank you. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to oppose this introduction of the bill. Sir, Republic of India is a union of states. By introducing or while considering this bill, it will be a direct attack on the federalism. It will be a sort of undermining the entity of states. So basic idea of the bill, introducing the bill, is to that expenditure which goes on unabated while elections are conducted, not simultaneously, but in different phases. And it is another reason which is being given that election code of conduct which comes into operation during elections halts the developing process of the states, and that affects the country as a whole. Sir, here my basic opposition is, as I said, that legislative competence of the states should not be undermined. It's a federalism which is being practiced, and that is the reason why I'm opposing. Only one thing I would say, that even Election Commission of India's competence itself should be checked. Election commissioners should come by way of elections. They should come with go through the election process and get elected by the people. Because what we have witnessed during last 2 to 3 years, that whatever the decision which was given by the Election Commission in the state of Maharashtra, which is not accepted according to the democratic principles of the Constitution enshrined in the Constitution, sir. So I oppose this bill. गौरव गोगोई जी के बाद में रूलिंग दे दूं, पहले गौरव गोगोई जी बोले। सर आप बोलिए सर, चर्चा है या 72 है, आप बोलिए पहले। देखिए, ये अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो उस विषय को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। नियम 72, नियम उपनियम 1 पहला परंतु वर्णित किया करता है कि यदि विधेयक पूर्व स्थापन का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि विधेयक की विषय वस्तु इस सभा की विधायन क्षमता से परे है। अब सबसे पहले वक्ता माननीय मनीष तिवारी जी ने ये विषय रखा और वक्ताओं ने भी रखा ये विधायन क्षमता से परे है, और इसीलिए जब ये विषय रखा तो मैंने इस विषय को कहा तो विधायक तो अध्यक्ष अन्य सदस्यों को विधेयक के बंदों पर अपने मत रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती, इस तहत किया। हाँ, आप गौरव संसद आगत होइछि वन नेशन वन इलेक्शन बिल, यहाँ उपरे लोकसभा चर्चा जारी रही। बिल आगत करिसेंती आईन मंत्री एवं कांग्रेस टीएमसी एसपी बिल को विरोध करुछंती, अगणतांत्रिक कही एही बिल को विरोध करुछंती विरोधी। अधिक आलोचना करबा हम सहित प्रोफेसर मानस बेहेरा राजनीति समीक्षक जोड़ी होइछंती फोन लाइन रे। प्रोफेसर बेहेरा,
आपण को आलोचना को स्वागत करबा को चाहिबी वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा आगत होईछि एवं चर्चा मध्य जारी रहिछि विरोध करूछन्ती ए बिल को विरोधी अगणतांत्रिक संविधान रो आत्मा उपरे आघात बोली कही बिल को जोरदार विरोध मध्य करा जाउछि विरोधी पक्षरु प्रोफेसर बेहरा निश्चय विरोधाभास अच्छी एवं या समर्थन जो माने कहउछन्ती से माने मध्य तांकर जुक्ति कहउछन्ती जो माने विरोध करूछन्ती तांकर जुक्ति कहउछन्ती किंतु मुख्य मुद्दा होची जेतेबेले भारत वर्ष भलिया एक विराट देश जे गोटे सब कंटिनेंट उपमहादेश भलिया एते विभिन्नता अछि सेठी जेतेबेले गोटाए निर्वाचन हबो निर्वाचन होची गणतंत्र लाइफ लाइन जीवन रेखा तो निर्वाचनटा सार्विक इनक्लूसिव होची तार्थ निर्वाचन में जेते प्लेयर समान स्पेस समान वॉइस समान स्वर पाइबा उचित तो ये गोटे आशंका आसी जो गोटे जातीय स्तर निर्वाचन हम बड़ बड़ राजनीतिक दल माने बड़ बड़ नेता माने तांकर मुद्दा जातीय मुद्दा ये प्राधान्य विस्तार करिवो एवं आंचलिक दल माने छोट छोट प्लेयर माने छोट पार्टी माने एवं प्रार्थी माने तांकर जो मुद्दा विशेष करके राज्य मानकर जो मुद्दा बा इश्यू राज्यर विकास कथा हो जेकोसी इश्यू हो आंचलिक दल कथा हो राज्यर विकास कथा हो संघीय व्यवस्था कथा हो ये कोट ना कोटी साइड लाइन हो पछकू ठेली एवं ये जो हेजिमोनाइज आम कहूँ संवैधानिक भाषा प्राधान्य विस्तार कर ये जो इश्यू सेटा गोटे मेजर कनसर्न जे मुख्यतः ये निर्वाचनटा सार्विक न हबार हुए तो एक देश एक निर्वाचन सहायक हो पारे द्वितीय प्रमुख मुद्दा होची जेतेबेले आंचलिक निम्न तृणमूल स्तर निर्वाचन म्युनिसिपालिटी हो पंचायत हो विदिन 100 डेज जो करिवार व्यवस्था अच्छी जदिव ये आगत है ना बिल रे बा जो प्रावधान अच्छी रामनाथ कोविंद कमिटी रेकमेंडेशन अनुसार तो सेठी आशंका होची जे जी ग्रामांचल जन प्रार्थी हो जिला स्तर हो म्युनिसिपालिटी बा कॉर्पोरेशन स्तर हो तार मुद्दा कौन हम तेणु सी केमिति लड़ब ये गोटे मेजर इश्यू होची अपरपक्ष जो माने समर्थन करुछन्ती से माने गोटे बड़ इश्यू उठाउछन्ती खर्च तो निर्वाचन क्रमे क्रमे भारत वर्ष रे अत्यंत व्ययबहुल होची ये सरकारी कोषागार उपर गोटे प्रबल चाप पकाउची तो सेठी जेतेबेले इंद्रजीत गुप्ता कमिटी आगुरु जी गृहमंत्री थिले तांकर नेतृत्व गोटे कमिटी हेतिला से रेकमेंड करथिले स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन बा राष्ट्र निर्वाचन परिचालना करिया उचित सो दैट जो दल माने प्रार्थी माने हजार हजार कोटी टंका व्यय करूचंती सेटा हबो नाही एवं भारत वर्ष अनेक पैसा बंची जाई परिबो एवं राष्ट्र सेटा परिचालना करिवो एवं राष्ट्र तहबिलु सेटा खर्च हबो द्वितीय जो माने सपक्ष कहउचंती जे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होची तेणु सेठी विकास ठप हे होची आ गोटे कहउचंती जे जेतु मासिव मोबिलाइजेशन अर्धसामरिक बल पुलिस कर्मचारी बारंबार निर्वाचन हला बेलू होची तो असुविधा निश्चित भाव में अच्छा किंतु आप तुलना करेंगे दीटा को जे जो गणतांत्रिक प्रक्रिया जनकर स्वर दबिवा उचित नुहे तार गुरुत्व तुलन ये गुरुत्व एत बहन करूना तेणु जिते स्टेक होल्डर अच्छा सब राजनीतिक दल माने बुद्धिजीवी माने नागरिक समाज ए डिटेल आलोचना करिया दरकार एवं आलोचना माध्यम सहमति भितर आईन संपर्क निष्पत्ति नवा उचित तेणु आशा करा जॉइंट पार्लियामेंटारी कमिटी की जीव एवं सेठी या भीतर डिटेल आलोचना हबो एवं जेहेतु भारत वर्ष एक विराट परिवर्तन गणतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया क्षेत्र रे तो एथिरे गोटे सहमति नियति प्रोफेसर बेहरा जमते आपण कहले जो तो गणतांत्रिक जो विधि व्यवस्था निर्वाचन व्यवस्था ये गोटे बड़ परिवर्तन आनिबो तेणु वितर्क माध्यम रे आलोचना माध्यम रे गोटे सहमति भितर आगु को बढ़िबा उचित प्रक्रिया एवं वर्तमान जितेबाला विरोध मध्य जोरदार करा जाउछि जेंति आपण कहले आलोचना जारी रही जो माने समर्थन करूछन्ति से माने जुक्ति उपस्थापन करूछन्ति जो माने विरोध करूछन्ति से माने मध्य जुक्ति उपस्थापन करूछन्ति ये बिल रो भविष्य को केमति देखुछन्ति प्रोफेसर बेहरा भविष्य वर्तमान सरकार क्लियर मेजोरिटी नाही जदि एटा आड हबो म्युनिसिपालिटी बा अलगा तृणमूल स्तर रे 50% राज्य मानकर आवश्यकता समर्थन आवश्यकता रहबो विधानसभा रो द्वितीय गुरुत्वपूर्ण दिग होछि ई जो 5टी संविधान संशोधन आवश्यकता रहबो आर्टिकल 172 आर्टिकल 356 आर्टिकल 83 151 152 141 147 ये लोक प्रतिनिधि आईन धारा ये सब गुड़ाए संशोधन अच्छी संशोधन एत सहज नुहे द्वितीय कथा कहूँ जोटा फेडराल स्पिरिट बा संघीय व्यवस्था जोटा जे राज्य मानकर जो स्वार्थ राज्य आंचलिक दलर स्वार्थ या सुप्रीम कोर्ट केमिति देखिबो जदि केशवानंद भारती केस रो बेसिक स्ट्रक्चर कथा आसु थाए सेटा माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करिवे ते ये जो नुआ आईन टे आसीबो एटा संघीय ढांचा ऊपर कोनोसी विरोधाभास करूची कि ताले सेटा मते हेटी गृहीत न होबार संभावना अछि
किंतु एटा राजनैतिक प्रतिद्वंदिता बा कन्फ्रंटेशन आडू न जाइकी उभय सरकारी दल एवं सरकारଙ୍କର एटा बेसी गुरुत्वपूर्ण दायित्व सबु स्टेक होल्डर को आणुचंदी जेटा एते सहज साध्य एई भले एक विराट परिवर्तन निर्वाचन प्रक्रिया रे हबो बोली कि मु भाबुने एते शीघ्र तेणु जदि कनसेंसस हो पार अनेक संवैधानिक संशोधन आवश्यकता अच्छी ताकू जदि कराई पारिबो ताहले यार भविष्यटा अस्थिवाचक रूप में देखिपार कहुच्छे प्रोफेसर बेरा जदि बिल आईन में परिणत हो 2034 से यह कार्यकारी हम जमी आप कहले ये एते सहज लगुना निश्चय यहाँ एत सहज नुहे कारण यहाँ को नहीं जो पॉलिटिकल डिबेट संसद आरंभ है संसद बाहर भी आरंभ हम तो विभिन्न आंचलिक दल माने आपनकर डीएमके हो तृणमूल कांग्रेस हो बा समाजवादी पार्टी हो एमाने विरोध कले कांग्रेस विरोध करुच्ची एनडीए जो दल 47 32 ये भाव में दल विभाजन होती इश्यू सेटा नुहे एटा पॉलिटिकल इश्यू जो भारत वर्ष भविष्य को आम देखा तो गणतंत्र जदि शक्तिशाली करने चाहती से सब छोट प्लेयर जी से इक्वाल अपॉर्चुनिटी पाइबा उचित ता ना भारत वर्ष गणतंत्र विपज्जनक हम तेणु यही कनसर्न टाकू ये नुआ आईन निश्चित भाव में विचार को नवा उचित नहले एटा सहज साध्य हबनी या पारित करिवारे बा पारित हेगले एको कार्यकारी करिवारे भविष्य अनेक समस्या सृष्टि हो कारण जो भांगी जीव सरकार 5 वर्ष तार टर्म पूर्व सेठी यार आईन प्रावधान अच्छी जे 2.5 वर्ष से 2 वर्ष जिते भी भांग आम काल्पनिक भाव में नहीं 2 वर्ष 2.5 वर्ष गोटे सरकार भांगला विधानसभा हो संसद रो सेठी राज्यपाल एवं राष्ट्रपति आकर अखंड क्षमता हो मैनिपुलेशन करिवारे यही तो दल बदल आईन अच्छी मानुना जो विधायक सांसद जो दल बदल को लेकिन अनेक अभियोग भारत वर्ष राजनीति में आसी रिसेंटली विगत 20-30 वर्ष भितर 40 वर्ष भितर किंतु यही ट्रेंड टा बंद हवा दरकार आदर यही नियम रे ट्रेंड ये धाराटा बेसी प्रोत्साहित है भाया लगुच जदियो यार जमी आप प्रोफेसर बेरा कहते जो आंचलिक दल गुड़िक विरोध कर संघीय ढांचा को शेष करने को किए करिबो बोली जो मध्य अभियोग आसुछि तेणु यहाँ विरोध करा कांग्रेस टीएमसी और एसपी पक्षर बहुत बहुत धन्यवाद आलोचना करुथिबारु प्रोफेसर मानस बेरा राजनीति समीक्षक फोन लाइन रे जोड़ी होते एवं विस्तृत भाव संपर्क में आलोचना करुथिले लोकसभा रे चर्चा जारी रही वन नेशन वन इलेक्शन बिल उपरे। थैंक यू असाउद्दीन ओवैसी स्पीकर सर Sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. ओवैसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दिए सर। ओवैसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 14-19. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. K. Radhakrishnan. अमराराम जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संविधान संशोधन 129 में जो संशोधन लाने के लिए लाए हैं बिल, मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध इसलिए करती है कि ये बिल इस देश की संवैधानिक संस्था संविधान और जनतंत्र को खत्म करके तानाशाही की ओर बढ़ने का काम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप खर्चे की बात करते हैं, जिसको 1 साल होगा उसके 4 साल में आप उसके जनतंत्र की हत्या करने का काम ये संविधान संशोधन, ये जो बिल लेके आए हैं, ये करने का काम करेगा। आइंदा भी निश्चित रूप से आप बताइए, लोकल बॉडी जो पंचायत और नगर पालिकाएं स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको भी आप लेना चाहते हैं,
क्यों लेना चाहते हैं कि एक हमारा ही चलेगा, बाकी देश का किसी भी राज्य का जो भिन्न भिन्न सेंस करती है, भाषा है, उसके अनुसार हमारे देश के संविधान ने उनको राज्यों को बनाया है, उनकी विधानसभा बनाया है, उनके अधिकार हैं, वो सब अधिकार आप इस बात के माध्यम से यहाँ लेना चाहते हैं। और केवल इसलिए कि तानाशाही फासिस्ट जो ताकत आप रूप से विरोध चाहे 356 हो, आगे भी अगर मान लो डिजोल्व हो गया, कोई फाल्ट हो गई, सरकार गिर गई, तो उसके लिए भी आप अगर 2 साल बाद गिर गई तो 3 साल के लिए चुनाव होंगे, 1 साल बच गया तो उसके लिए होगा। इसलिए ये डिटेल चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सुप्रिया सुले चर्चा कराई और आज 2 दिन बाद में उसी संविधान को तहस नहस करने के लिए बिल लेके आए हो। इसका हमारी पार्टी बिल्कुल विरोध करती है। सुप्रिया सुले। Thank you, sir. Sir, on behalf of the Nationalist Congress Party SP, I oppose the 129th Constitution Amendment Bill. Clearly, most of my colleagues have made the 3 most important points: that this is completely against federalism and the Constitution of India. The centre and the states have their own tenures and terms. So I think to mix the two is not fair, because the Article 356, because just last week, sir, we debated Article 356, and in the case of S.R. Bommai versus the Constitution of India, dissolving of assemblies was something which both sides have objected, and both sides have done it. So if we object to this, why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I think to break away these tenures is completely objectionable, and India is a union of states. Central government cannot. Cooperative federalism is something which we are so proud of. So I request the Honorable, the Government of India, either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee so we have a detailed discussion, and we'll be happy to support as long as it comes to a joint parliamentary committee. Thank you, sir. संक्षिप्त में बोलना श्रीकांत जी, सब संक्षिप्त में बोलो भाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं अपनी पार्टी दादा बैठे, आपको मिला नहीं इसलिए हमें भी आप वंचित मत कीजिए, बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम भी। मैं आज अपनी पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी, और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। श्रीकांत शिंदे जी, संक्षिप्त में मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन 1-1 मिनट में अपनी बात करें, विषय पर समाप्त कर दे। आपके दल के लोगों ने डिटेल बोल दिया। श्रीकांत शिंदे जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, और आज यहां पर विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है
तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। यहाँ पर सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं सर, हर एक व्यक्ति यहाँ पर उठकर संविधान समझा रहा है। मुझे लगता है मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 में इंदिरा गांधी सर ये बिल जो 1975 को शुरू करता हूं, इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन मैल प्रैक्टिस। अरे वो विषय क्या है, आप संक्षिप्त में करिए। सर एक पॉइंट बोल रहा हूं सर, यानी इलेक्शन मैल प्रैक्टिस और यानी चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिनती पाया और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस जज के साथ कैसा व्यवहार हुआ ये पूरा देश यहाँ पर जानता है। और सिर्फ 3 दिन में 29वां संविधान संशोधन लाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। ये इनका संविधान है सर, ये फेडरलिज्म नो मानिए प्लीज। ये बिल क्यों जरूरी है ये 2 पॉइंट्स में समझाना चाहूंगा सर। समझ गए आप? एन के प्रेमचंद जी, एन के प्रेमचंद प्लीज प्लीज।